When should we start for essay writing for UPSC? If you are preparing for a UPSC 2026 means, of course, every week you should write. But if you are preparing for a 2027, then there are 5 things to be done before starting essay writing. So here 5 things what they are, it is very important. First of all, foundation should be built. Overall, complete GS 1, 2, 3, 4. एक बार रीडिंग तो भी हुई होनी चाहिए या फिर आपने क्लासेस किए होने चाहिए. आफ्टर दैट न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एसए. एक साल का रीडिंग या 6-7 मंथ्स का रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर, यू हैव टू प्रिपेयर एथिक्स वेरी वेल. गिव 20-30 days वॉट एवर according to your foundation and go for answer writing of it. After that, society. Fourth, society is also very important, which is from the GS1 paper, and you should prepare that very properly and with answer writing. Another basic format you should know for essay, because on that parameter your essay is checked. It is a formal essay in UPSC, right? Now, why we have to do all these things, why they are important, so let's see that. Okay, now if you have foundation already done, ठीक है, तो यहाँ पे आप essay में बहुत सारे dimensions दे सकते हो. Otherwise you will not able to open up these dimensions, right? So here you can go for a, like, first if we go with a GS1, then historical dimension you can give geographical dimension, you can give societal, social dimension. If you go with a GS2, then political dimension you can give. If you go with a international relation, then international dimension you can give. Global dimension you can give. If you go with a GS3, then economical angle. Also environment, also SNT dimension. Yes, security dimension also you can give. Right? Defense also dimension you can give. In this way you can give different dimension only when you have this foundation done. Okay, at least reading. Now if we go with a newspaper reading, why I am saying newspaper reading at least 1 year or 6 months, because this will help you to first of all vocabulary. तो सबसे पहले हमें vocabulary का ही डर रहता है कि अच्छे से लिख पाएंगे कि नहीं ऐसे. Okay, so that you will get from here, and that will be very important for articulation. Here you have to write very well, effective it should be. So सारे key terms भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे along with your foundation also. So यहाँ पे आपके key terms भी ready होंगे, vocab भी and key terms. Okay, another very important, आपको इसमें substantiate भी करना पड़ता है essay में. UPSC के essay में you have to substantiate with some facts or with some examples. तो वो भी आपको case studies newspaper से मिलेगी. Done? ठीक है. That is why it is very important. ठीक है, अभी मैं एथिक्स का क्यों बोल रही हूँ, वाई आई एम सेइंग कि एथिक्स का आंसर राइटिंग करना है. अगर आपने देखा होगा हमारे जो एसेज है वो अभी फिलोसॉफिकल है, तो क्यों नहीं हमें फिलोसॉफिकल एंगल भी पता होना चाहिए. ठीक है, तो डिफरेंट फिलोसॉफीज भी हमें सीखनी होगी. ठीक है, और हमें राइट एंड रॉन्ग भी समझना होगा एथिकली. ठीक है, why? Because when you write essay you cannot show your biases. You have to be ethically right, because you are a civil servant. When you are writing mains, you have already cleared prelims, so in essay you will be treated as a civil servant, right? At that level they will check. So यहाँ पे आपका right and wrong decisions भी proper होने चाहिए, उसके लिए philosophies होनी चाहिए substantiate करने के लिए. And if you write code based question, अगर आपने code based questions लिख के होंगे तो ऐसे समझो आपने small ऑलरेडी एक ऐसे लिख लिया है, और यहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन भी सही करने का आइडिया आ जाता है. आप यहाँ पे इंटरप्रिटेशन सही करना सीख लेते हो. दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. एटलीस्ट एथिक्स में कोड्स तो लिखने ही चाहिए ताकि इंटरप्रिटेशन एंड रिलेवेंस आप उसको लिख सकते हो. नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि गो विद द सोसाइटी. आपने अगर देखा होगा सोसाइटी बहुत डायनामिक है, राइट? तो यहाँ पे ना आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल होगी ना वो इतनी अच्छी डेवलप हो जाएगी कि आप बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जो डायनामिक पार्ट है, वो आप लिख सकते हो, अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो. एंड बिकॉज ऑफ दैट आप जो भी बायसेस है या प्रेजुडाइजेस है अगर होगी तो वो इट विल बी नॉट देयर बिकॉज ऑफ राइटिंग दिस एसे, या एटलीस्ट ऑन पेपर यू शुड बी राइटिंग इट वेरी वेल. एंड वो जो है डायनामिक थिंग एंड नॉट हैविंग प्रेजुडाइजेस और बायसेस विच इज़ रॉन्ग, it should not be reflected in your essay.
तो यहाँ पे वो आपका ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका ऐसे के थ्रू आपकी एक काइंड ऑफ व्हाट इज़ योर थिंकिंग, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस, दैट दे वांट टू एक्सप्रेस इन एसे। और इतना 1200 क्यों बोला है वर्ड्स, ताकि वो आपकी थिंकिंग भी समझ पाए, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिविल सर्वेंट, सो इट शुड नॉट बी प्रिजुडाइज्ड और हैविंग सम बायसेस, ठीक है, जो आपको हर्डल क्रिएट कर सकते हैं एज अ सिविल सर्वेंट, तो वो वहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि इट शुड बी। तो डायनामिक चीज़ें, कम्युनल चीज़ें, जो एग्जाम्पल हो गए सिकुलरिज्म रिलेटेड या फिर सोसाइटी में वुमेन रिलेटेड, ऑल दिस थिंग्स यू हैव ऑलरेडी डन एट अ सोसाइटी लेवल इन अ सोसाइटी, तो यहाँ पे आपको और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ बेसिक फॉर्मेट। बेसिक फॉर्मेट सीखना बहुत ज़रूरी है। हमें इंट्रोडक्शन कितना लिखना चाहिए, कितना बॉडी होना चाहिए, उसमें मैक्रो थीम्स होने चाहिए, माइक्रो थीम्स होने चाहिए, उसमें आप जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो उसको सब्सटैंशिएट करना होगा, कोट भी देना होगा। सो ऑल दिस थिंग्स, देन कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थीसिस, एंटीथीसिस, पैरेलल थीसिस, ठीक है, एंड व्हाट इज़ अ वे फॉरवर्ड, सिंथेसिस। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होगी, ठीक है। सो दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर वी हैव टू फॉलो। After getting this knowledge, okay, then you should, and about these things you have prepared, then you should go for essay. आपका essay कहीं ना कहीं एटलीस्ट जो इनिशियल लेवल पे होगा वो इतना ये नहीं होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आपका हर्ट मतलब अफेक्ट करे, ठीक है। नाउ बट ये तो सारा ठीक है, ओके, माइट बी यू हैव डन ऑल दिस थिंग्स अर्लियर, बट स्टिल देर इज़ अ चैलेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज थिंकिंग कि मैम इंग्लिश दे विल से कि इंग्लिश लिटरेचर अच्छा होना चाहिए। सी, इट इज़ नॉट एग्जाम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पे आपको सिंपल इंग्लिश, आपने कम्युनिकेशन लैंग्वेज चूज़ की है, सो मेक श्योर कि आप जो भी लिख रहे हो इंग्लिश में वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। बेसिक ग्रामर यू कैन कीप, ओके, आपका बेसिक ग्रामर सही होना चाहिए, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट एंड ऑल दैट थिंग, उतना अगर अच्छे से रख लो। और स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत नहीं करने हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स वी कैन अवॉइड, बट कुछ हो जाते हैं, बट इट शुड नॉट बी मोर, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें आप ध्यान रखोगे, और वो कैब जो है सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए, उनको कोई लिटरेचर नहीं चाहिए कि वो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लैंग्वेज लिखी, फ्लावरी नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल में भी आप एक्सप्रेसिव हो, इफेक्टिवली आप एक्सप्रेस कर रहे हो की टर्म्स यूज़ करके, तो वो आपके फाउंडेशन से ही और आपके न्यूज़पेपर से ही बन चुके रहते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई डोंट वरी कि मैम इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश अच्छा नहीं है, इट्स ओके। दिस टू थिंग्स आप थोड़ा ध्यान रखिए। अनदर थिंग, राइटिंग चैलेंज, कि लिखने का मन ही नहीं करता, सारा तो कर लिया, नहीं, आपको ये जो है ये डर निकालना होगा। इसमें ऐसे में आपने जो भी फाउंडेशन पढ़ा है वही नॉलेज, और करंट अफेयर वही नॉलेज आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन एज सच क्या है 250 मार्क्स के लिए? प्रिपरेशन इज राइटिंग आंसर्स, ठीक है। तो सॉरी, राइटिंग योर एसे। तो यहाँ पे आपको राइटिंग बहुत ज़रूरी है, एसे लिखिए, प्रैक्टिस करिए, इसका यही है चेन। फीडबैक लीजिए, इसे फीडबैक से नेगेटिव मत हुई। अगर आप ऐसे एकदम 12th स्टैंडर्ड का लिख रहे हो या फिर 10th स्टैंडर्ड का लिख रहे हो लेवल पे, देन ऑल्सो ओके, एट इनिशियल लेवल फाइन। हर एक का बेंचमार्क अलग होता है, एवरीवन विल हैव डिफरेंट बेंचमार्क। व्हाई? कुछ लोग जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, कुछ डॉक्टर बैकग्राउंड से आ रहे हो, उनको एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट हो रहा होगा। जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, उनके लिए थोड़ा ईजी हो सकता है। तो हर एक का बेंचमार्क अलग हो सकता है। किसी का इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है तो वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इट्स ओके। तो वॉट एवर बेंचमार्क विल बी डिफरेंट, बट whatever it is, accept it by writing and then take a feedback and then go for an improvement, again go for a, that is improvement means फिर से लिखना ही है, writing stop नहीं हो जाना है यहाँ पे, you cannot stop, okay, then improve and then again take a feedback। यही जो साइकिल है चलता रहेगा, writing feedback for everyone, okay। benchmark will be different but this practice has to be done, there is no other option for this। after that you can see we will start with a basic structure। यहाँ पे आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नेक्स्ट लेक्चर में I'll explain basic structure in a detail, because मैंने thesis, antithesis, ये बहुत सारे words यूज़ किए है ना। सो हम ये सारी चीज़ें जो है एक डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे विद सम एग्जाम्पल। बट टुडे आई जस्ट गिव यू फ्यू आइडिया कि आपको जैसे इसमें इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है, फिर आपको बॉडी मेन पार्ट आती है,
Okay, and then here conclusion. Like this only it is. So here you have to write 2 essay, one for 1200 words each. ठीक है, और 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, तो 1.5 फॉर 1 essay. तो इंट्रोडक्शन में भी अगर ये हमने देखा तो इसको अगर हमने 900 भी रखा तो 150 वर्ड्स हम रख सकते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है. ठीक है, वी कैन कीप लाइक दिस. फाइन. यहाँ पे अभी हम क्या डील करते हैं, यहाँ पे काफ़ी डायमेंशंस देते हैं और यहीं पर हम थीसिस, एंटीथेसिस और वो सारी चीज़ें सीखते हैं, हमारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, सब्सटेंशिएट करते. तो ये जो चीज़ें हैं प्रॉपर डिटेल आई टेक वन लेक्चर.